Okay, good evening, students. So we are continuing with this course, Design of Steel Structure. This is our lecture number 15, and we have started the new unit, that is Design of Tension Member, Axial Tension. So theory वगैरह basics हमने देख लिया था in the last class, and we have discussed the how we can calculate the net area along section, along different section, and in measurement of the strength we will take the lesser area. What will be the formula for inclined case, staggered case of a net that we have seen. Now coming to the design of the tension member. So in the design we have three things here. First, we have to calculate the strength in yielding, that is called TDG. Then we have to calculate the strength in net rupture, that is called TDN. And another one that we have to calculate is strength in block shear. Okay, that is called block shear strength. So in these three we will calculate the one by one, and then the strength will be the lesser of all three. Lesser of all three will be the design strength, will be the design strength of the member, design tensile strength of the member. And that design tensile strength, let us say TD, that design tensile strength should be greater than the tensile load T. It should be greater than the tensile load T. It should not be less than tensile load T. If it is, then we have to redesign the section, right? So let us see one by one. So it is written over here, T should be less than TD, design strength. And what is the TD? TD is the least of these three things: yielding of gross section, rupture of critical section, and block shear strength of the section. So formula for the yielding of a gross section, which is denoted by TDG, is equal to AG Fy over gamma m naught, in which AG is your gross area, your gross area. Fy is the yield stress, and the denominator में gamma m naught is 1.1. You know all that. This design of tension member is given in the IS code IS 800,007 in clause 6.1. Okay, so while calculating the yielding, yielding of a gross section or gross area, we consider generally the gross area, and along with that we consider yield strength, right? Means if you have a section like this and some bolts are provided like this, and if you take this section, means this section, let us say this section is a 1 1, so along this section there is no such bolt, no such hole, right? So this is the pure fully area section. This is, you can say, this is the AG section, gross area section. Means area is coming fully, okay, no deduction of hole or no deduction of bolt, okay. But along this section 2 2 there are two holes, okay, two bolts and two holes, so we have to deduct this. So when we talk about the yielding, we just take this section like 1 1, in which we take gross area, and when the gross area come, then only in that case yielding stress come into picture. I mean, if you talk about the gross area, then उसमें आपको Fy ही consider करना होगा. If you talk about the net area A net, then you consider the Fu, ultimate strength. ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज क्रैक हो रही है, वहां से टीयर हो रही है, तो इट इट विल गो टू इट्स ultimate strength. And if you talk about the yielding, right, yielding, then you mean that yielding है तो वहां पर कोई होल नहीं है, और yielding है तो we will take the yield stress only. ठीक है, so in yielding case the formula will be the AgFi upon gamma m naught, and gamma m naught is 1.1, right? And the next is the strength in rupture of a critical section, denoted as TDN. It is equal to 0.9 Fu
into an upon gamma m1. Okay, when comes it is it comes to rupture, the partial factor of safety has been changed, and that is gamma m1, that is 1.25. you know Area is also changed. Here area is gross area, and the here area is a net, an. One more thing, here stress is fy, and here in rupture stress is zero point 0.9 fu, right? Zero point 0.9 is some kind of a reduction of 10% to cope up the some errors, but generally we take fu. ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेनली वही बात कर रहे हैं। 0.9 भी लेते हैं एज अ कांस्टेंट, मतलब 90% ऑफ एफ यू वी आर कंसिडरिंग। ओके, 10% एक ऐसा कह सकते हैं कि एक फर्दर हमने एक तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कंसिडर कर लिया। इनटू ए नेट, राइट? A net, how we can calculate the A net of plate, that we have seen already in last lecture, right? Okay, so B minus ND naught into T, like, so we can calculate the A net. Fu we know, gamma m1 is 1.25. This formula is applicable for plates only, right? For the plates only and threaded rods, right? But for the angle section, what will be the formula? For angle section, formula is bit different. Let us say this is the angle section and it is connected to gusset plate. This is your gusset plate. It is angle section. Here you have provided the bolting. This is the one bolt that you have provided, right? This is your bolt. So this leg is connected to this gusset plate. So this leg is called connected leg, and this leg is called outstanding leg or unconnected leg, right? Outstanding leg. Width of the outstanding leg is W, and width of connected leg from the bolt placement to the edge, that is W1. This width is not entire width of this connected leg. This is just from the where you have provided the bolt till the this edge. This is W1. So this is denotion, and the formula for rupture of critical section, that is TDN equals to 0.9 ANC into FI. Sorry, 0.9 to ANC into FU. When it comes to the ANC net area, तो definitely net area के साथ FU ही होगा, और जब FU होगा तो 0.9 भी होगा in case of tension member, डिवाइड बाई, और जब नेट एरिया होगा तो गामा एम नॉट नहीं होगा, ऑलवेज गामा M1 होगा। ये हमेशा आप याद रखें। प्लस बीटा, एक कांस्टेंट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, नॉट द कांस्टेंट, इट इज अ फैक्टर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ये बेसिकली ऐड हो रहा है शेयर लैग कॉन्सेप्ट की वजह से। शेयर लैग जो होता है, मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, अभी डिटेल में देख लेते हैं। उसकी वजह से फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन विद AGO। AGO डिनोशन का मतलब हो गया ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। एज इज द ग्रॉस एरिया, O डिनोट्स आउटस्टैंडिंग लेग। When it comes to the AG, always we write FI, and if you write FI, always we write gamma m naught, right? Yielding wala 1.1. Here it is written ANC. ANC means net area of C. What C? Net area of connected leg. So ANC is connected leg का net area, और AGO is outstanding leg का gross area. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, AGO ANC। ओके, फर्दर हम वी कैन सी दिस थिंग इन द न्यूमेरिकल, आई विल टेल यू, बट नाउ फोकस ऑन बीटा। व्हाट इज द बीटा एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फैक्टर। बीटा का मतलब है, लेट अस से दिस इज योर एंगल सेक्शन, इट इज कनेक्टेड टू दिस गसेट प्लेट, राइट? So load is passing through this gusset plate to this angle section, and in this angle section, this leg, vertical leg, is directly attached to this gusset plate, right? So load is transferred from this plate to this side with this help of this, or through this vertical connected leg only। तो ये जो कनेक्टेड लेग वर्टिकल है, ये अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में एज कंपेयर टू दिस आउटस्टैंडिंग लेग, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच। तो जो शेयर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगी ये लेग, इससे ज्यादा होगा किससे? आउटस्टैंडिंग लेग से।
तो if you draw the shear diagram, it will like this. Here the shear resistance is more, and as we go the right side, there is only outstanding lag. The shear resistance value is decreases, right? This is called shear lag. मतलब shear में lag हो गया, ठीक है? Outstanding lag का. तो beta is defined. Beta is 1.4 minus 0.076 into small w by t into fy upon fu into bs upon lc. ठीक. bs is the shear lag width. bs देख लेते हैं पहले. shear lag width मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि this portion is up till this portion the thing is different. From here to here we are counting, means w1 plus w, ठीक है. और if we count from here to here, you can see w1 is till this edge and w started from this edge. So this t is counted twice. Okay, मतलब ये आपने यहाँ तक ले ली, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हो, तो ये जो t है, थिकनेस है, ये आपने दो बार काउंट कर ली. सो दिस t यू आर डिडक्टिंग फ्रॉम दिस. तो ये हो गया w प्लस w1 माइनस t. ओके, दिस t यू आर डिडक्टिंग, दिस t. This is for bolt. For weld, it is given here. Welding is, you know, entire means entire. It is connected, this leg, vertical leg is connected with this gusset plate with this full depth, right? तो फुल डेप्थ का मतलब ये है कि bs जो शेयर लाइक विड्थ होगी दिस केस के लिए, वेल्डिंग केस के लिए, वो कंप्लीट w होगी, ठीक है. दिस कंप्लीट w, because this leg is not, this outstanding leg is lagging behind in shear. Okay, this not this width, or this width of outstanding leg is not taking part directly into the resistance of shear. So in case of weld, this shear lag width is w only, but in case of weld we will add this w with this w1, right? fy fu आपको पता ही है. नाउ कम्स टू द lc, लेंथ ऑफ कनेक्शन. ठीक है, लेंथ ऑफ कनेक्शन का मतलब है कि लेंथ ऑफ जॉइंट, राइट? मींस फ्रॉम द लास्ट बोल्ट टू द फर्स्ट बोल्ट, center to center distance from the last bolt to the first bolt, this is length, lc, length of connection. फाइन. w आपको पता ही है क्या है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ, और t आपको पता है थिकनेस ऑफ दिस एंगल सेक्शन. so this is the beta, how we can calculate the beta for angle section, and then we'll put this beta here and we'll get the rupture strength. This is a very big formula. Generally we calculate by this, but if we have to design some member or some connection to when the structure member is carrying the tension, in that case what we do some shortcut method. So this is a kind of shortcut. TDN equals to alpha an fu over gamma m1. तो रप्चर स्ट्रेंथ का एक छोटा सा फॉर्मूला है, अल्फा an fu ओवर गामा m1. fu आपको पता है, गामा m1 यू नो. अल्फा हियर इज द डिफरेंट थिंग. an इज द नेट एरिया. नेट एरिया यहाँ पर होगा, an इज द नेट एरिया ऑफ होल एंगल सेक्शन. होल एंगल सेक्शन मतलब आउटस्टैंडिंग लेग का और प्लस कनेक्टेड लेग का, दोनों का मिला के नेट एरिया. अल्फा यहाँ पर एक कांस्टेंट है. अल्फा कहा गया है कि अल्फा यू कैन टेक अल्फा 0.6 फॉर 1 to 2 बोल्ट, 0.7 फॉर 3 बोल्ट, एंड फॉर 4 बोल्ट या मोर देन 4 बोल्ट, 4 या 4 से ज्यादा बोल्ट के लिए आप 0.8 ले सकते हैं. तो दिस थिंग यू कैन डू फॉर शॉर्टकट टू calculate this TDN value, rough TDN value, approximate TDN value, approximate rupture strength value. ठीक है, दिस ये हम यूज करेंगे बेसिकली डिजाइन न्यूमेरिकल के लिए. ठीक है, लेटर विल सी दिस. नाउ कमिंग टू द थर्ड, यील्डिंग हो गया.
एंड देन हमने सेकंड कर लिया आपका रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, थर्ड स्ट्रेंथ दैट इज ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ. ब्लॉक शेयर, ठीक है, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है ब्लॉक शेयर, दिस फेलियर इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक. जैसे ये एक प्लेट आपको गिवन है एंड यू आर अप्लाइंग द पी फोर्स, राइट. तो दिस प्लेट इज फेल लाइक दिस. ओके, जैसे ये प्लेट आपकी गिवन है, दिस प्लेट में फेल लाइक दिस प्लेट में कम आउट लाइक दिस. ओके, इफ दिस प्लेट में फेलिंग लाइक दिस, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा बोल्ट का, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो फेलियर ब्लॉक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और अगर फेलियर ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा तो वी शुड एनालाइज और वी हैव टू एनालाइज दिस स्ट्रेंथ आल्सो. तो फॉर्मूला फॉर ब्लॉक शेयर इज, दो तरह से इसमें हम निकालते हैं, ठीक है, एक शेयर के अकॉर्डिंग और एक टेंशन के अकॉर्डिंग, यील्डिंग और फ्रैक्चर में. द फॉर्मूला इज टी डी बी वन critical condition for one, critical condition 2, TDB1 AVG FI over root 3 into gamma m naught plus 0.9 ATN FU over gamma m1. Okay, TDB2 is 0.9 AVN FU over root 3 into gamma m1 plus ATG FY over gamma m naught. ठीक है, देखने में ये फर्स्ट टाइम देखने में बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला लगता है, बहुत हार्ड लगता है कि कैसे इसको याद किया जाए, बट इट इज इजी. फर्स्ट दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज, मैंने इससे पहले भी बताया, अभी हम देख रहे हैं शेयर यील्ड. आप यहाँ देखिए शेयर यील्ड एंड टेंशन फ्रैक्चर, दो चीजें यहाँ पर हैं. ब्लॉक्स की फॉर्म में है तो हॉरिजॉन्टल वाली चीज जा रही है शेयर में, वर्टिकल वाली चीज जा रही है टेंशन में. तो शेयर का अगर यील्डिंग एरिया ले रहे हैं, यील्डिंग ले रहे हैं, तो टेंशन का रप्चर लेना है, फ्रैक्चर या रप्चर लेना है. सेकंड केस में शेयर का फ्रैक्चर या रप्चर ले रहे हैं, शेयर का फ्रैक्चर ले रहे हैं, तो टेंशन का यील्ड लेना है. ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अच्छा, ये अगर आपने ध्यान दे दिया कि शेयर का यील्ड ले रहे हैं, तो यील्डिंग का मतलब है एफ वाई. एफ वाई तो आ गया. ओके, एफ आई आ गया तो गामा एम नॉट भी आ गया शेयरिंग के लिए. गामा एम वन सिर्फ रप्चर में होता है, मैंने बता दिया था आपको. तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई. अच्छा, शेयर की बात हो रही है, राइट. शेयर, तो शेयर में मैंने बताया था ऑलवेज रूट थ्री का डिवाइड होता है. फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, जब हम बोल्ट की स्ट्रेंथ पढ़ते थे, तो वहां पर भी जो है शेयरिंग में रूट थ्री से डिवाइड होता है, क्योंकि शेयरिंग में स्ट्रेंथ कम होती है डक्टाइल मटेरियल की, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल इज वीकर इन शेयर एज कंपेयर टू टेंशन और कंप्रेशन. सो रूट थ्री का डिवीजन होता है, एक तरह का एक कांस्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि आप डिडक्ट करते हो स्ट्रेंथ शेयर में, ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आप ऐसा कह सकते हो. तो शेयर है तो रूट थ्री भाई डिनोमिनेटर में होगा ही होगा, ठीक है. और यील्डिंग की बात चल रही है तो ग्रॉस एरिया आएगा, एफ वाई आएगा, गामा एम नॉट साथ में आएगा. अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस एरिया को डायरेक्ट एजी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है एवीजी, ठीक है. एवीजी मतलब शेयर में ग्रॉस एरिया, ठीक है, डिनोशन है ये, ताकि आप जो ना मिक्सअप ना करो चीजें. प्लस टेंशन का फ्रैक्चर एरिया. तो रप्चर या फ्रैक्चर एक ही चीज है, ठीक है, रप्चर और फ्रैक्चर. आई एम राइटिंग हियर, डोंट बी कंफ्यूज. रप्चर, व्हेन इट कम्स टू द रप्चर, रप्चर मींस रप्चर होगा तो 0.9 जरूर होगा, एफ यू होगा, और डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, दैट इज गामा एम वन होगा ऑलवेज, ठीक है. और इन दिस जो आपका एरिया होगा वो आपका एरिया टेंशन का होगा और नेट एरिया होगा, राइट. सेकंड टीडीबी टू में शेयर फ्रैक्चर प्लस टेंशन यील्ड. अच्छा, पहले बात कर रहे हैं शेयर के फ्रैक्चर की, मतलब शेयर है तो रूट थ्री तो नीचे है ही, बट शेयर में इस बार यील्डिंग नहीं है, फ्रैक्चर है. तो एफ आई की जगह क्या आ गया, एफ यू आ गया. फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एम नॉट नहीं आया, गामा एम वन आ गया, राइट. एफ यू आया तो 0.9, एफ यू ऑलवेज 0.9 होगा ही होगा. एंड एरिया भी चेंज हो गया, एवीजी ग्रॉस था, एवीएन हो गया नेट, शेयर में नेट एरिया, राइट. प्लस टेंशन यील्ड कैसे निकालेंगे, टेंशन में यील्ड. सो यील्डिंग की बात कर रहे हैं तो एफ आई जरूर होगा और गामा एम नॉट जरूर होगा, राइट. और यहाँ पर आएगा टेंशन का यील्ड एरिया यानी ए टी जी,
टेंशन का, सॉरी ग्रॉस एरिया, मतलब ग्रॉस एरिया, यील्ड में ग्रॉस एरिया लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा ग्रॉस एरिया। देखिए ये हो गया आपका टेंशन यील्ड, राइट। तो इस तरह से ये टी डी बी वन आप निकालेंगे, टी डी बी टू निकालेंगे, दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और जो लीस्ट होगा इसमें, लीस्ट फ्रॉम टी डी बी वन एंड टी डी बी टू इज योर टी डी बी, least of both of these is your TDB. TDB is your block shear strength, right? तो एक बाकी न्यूमेरिकल में देखेंगे, आइडिया आप ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक फिगर आपको गिवन है यहाँ पे, और इस तरह से ये दिस वन, इसको देखिए आप राइट साइड वाले को, इस तरह से ये दो बोल्ट हैं और इस तरह फेलियर आपका ये यूं हुआ फेलियर, राइट। एक बोल्ट इधर आ रहा है, एक बोल्ट ये आ रहा है और एक बोल्ट ऐसे आ रहा है। तो शेयर का मतलब है कि शेयर मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, इतना समझ में आ गया। फिर शेयर में दो एरिया थे, एक एवीजी था, एक एवीएन था, है ना। एवीजी मतलब शेयर में ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस में आएगा यहां से यहां तक की विड्थ, टोटल विड्थ यहां से यहां तक की विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना, यहां तक की विड्थ बी इंटू टी एरिया, थिकनेस ऑफ प्लेट। इसी में अगर मैं नेट की बात करूं तो एवीएन हो जाएगा, राइट, नेट शेयर एरिया। तो नेट में क्या करेंगे आप, जो भी इस यहां से यहां तक इस पाथ में आपके नंबर ऑफ बोल्ट मतलब नंबर ऑफ होल्स आ रहे हैं उसको हम माइनस करोगे, जैसे हम नेट एरिया निकालते हैं, है ना। तो इफ यू सी, यू कैन सी हियर दिस बोल्ट इज कमिंग एज वन कंप्लीट एंड दिस बोल्ट इज कमिंग हाफ, क्योंकि ये आधे से इस तरह से कट जाएगा, हाफ लेते हैं ना कॉर्नर में, तो कॉर्नर बोल्ट है इसलिए हाफ। सो यू विल डिडक्ट बी माइनस 1.5 डी नॉट इंटू टी, this is your net area in shear AVN, this width till here minus this bolt and 0.5 of this bolt का diameter, sorry hole का diameter, so that is D naught into thickness of plate. Similarly you can calculate the ATG and ATN, right? ATG and ATN, तो ATG means टेंशन में ग्रॉस एरिया, यानी वर्टिकल का ग्रॉस एरिया, यानी यहां से यहां तक, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो भी ये वाली जो भी हाइट है इनटू थिकनेस, तो ये जो भी ये इसको हाइट बोल लीजिए अगर आप, तो h इंटू टी, दिस इज योर टेंशन में ग्रॉस एरिया। एटीएन मतलब हो गया टेंशन में यील्ड एरिया, ठीक है। तो टेंशन में यील्ड मतलब इस पाथ में जो भी आपके बोल्ट आए, राइट। तो इसमें भी सेम सिमिलर है, नीचे वाला बोल्ट कंप्लीटली कट हो रहा है और ऊपर वाला बोल्ट हाफ कट हो रहा है। तो सिमिलरली यू कैन राइट b माइनस 1.5 डी नॉट इंटू टी। इस तरह से आपको निकालने हैं चारों एरिया, ये एक टास्क है आपको चारों एरिया फाइंड करना, राइट। तो न्यूमेरिकल में देखते हैं अच्छे से। अच्छा वैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, थ्योरी आपको गिवन है, एवीजी एंड एवीएन इज मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया, ग्रॉस जी और एन वाला नेट एरिया in shear along the bolt line parallel to the force. If force is directing this way like horizontally, तो horizontal के ही parallel मतलब horizontally ही जो area होगा that will come into shear. Okay, ATG and ATN, the minimum gross and net area in tension along from bolt hole to toe of the angle, ठीक है, यानी perpendicular, right? Now coming to one design numerical, so that you will get some clarity, right? So question is 2 ISA, देखिए क्वेश्चन है 2 ISA 75 into 50 into 8 are connected to a gusset plate on its same side of thickness, on the same side of thickness 10 mm by 4M18 grade 4.6 bolt. Find the design tensile strength of angle if gusset plate is connected to longer leg and second part is gusset plate is connected to shorter leg, right? तो दोनों केस के लिए, एक ही केस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरे केस के लिए आप समझ जाओगे, है ना। क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 ISA मतलब दो एंगल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन विच इज 2, बोथ आर ऑन द राइट साइड, वन साइड, ओके, फिगर इज गिवन, वन साइड का मतलब है ये आपकी गसट प्लेट हो गई और इसी के ही दोनों साइड मतलब ये आपका पहला एंगल हो गया और दिस इज योर अनदर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन इज 75 by 50 by 8,
तो दिस इज अनइक्वल एंगल, ओके। मतलब हम इफ यू आर सॉल्विंग द फर्स्ट केस, गसट प्लेट गसट प्लेट इज कनेक्टेड टू लॉन्गर लेग, तो मतलब इस तरह से होगा ये, राइट। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 75 और यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई 50 और थिकनेस इसकी हो गई 8 mm, ठीक है, 8। इस तरह से एंगल सेक्शन आपको गिवन है, दो है। 4 बोल्ट आपके लगे हैं M18, मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट इज गिवन टू यू 18 mm, ठीक है। 4 बोल्ट आपके लगे इस तरह से अरेंजमेंट है आपका। एंड द साइड व्यू ऑफ दिस इज लाइक दिस इज प्लेट, दिस इज योर गसट प्लेट, ओके। 4 बोल्ट्स गिवन है। पिच और गेज डिस्टेंस भी आपको गिवन है, गेज गिवन है, पिच गिवन है 50-50-50, एज डिस्टेंस आपको गिवन है 30 mm। एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन दिस फिगर। डायमेंशंस तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ वन बाय वन। सो तीन स्ट्रेंथ है, फर्स्ट विल कैलकुलेट इन यील्डिंग, देन विल कैलकुलेट इन रप्चर, देन विल कैलकुलेट इन ब्लॉक शेयर। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। यील्डिंग का फॉर्मूला आपको पता है, TDG इज इक्वल टू AG FY over 1.1, right? Equals to what is the AG, what is the FY? 250, okay fine। AG क्या है और 1.1 गामा एम नॉट हो गया। So AG for this section is given to you 75 into 8, 75 into 50 into 8। Either you can take this gross area of this particular section from steel table, right? From steel table, or if you does not have steel table, so you can calculate the gross area like this, okay। 75 into 50 minus 8 into t, ओके। सारी लेग का समेशन कर दिया, इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ये क्या माइनस करा है, टी, क्योंकि ये जो है थिकनेस यहाँ पे ट्वाइस आ गई, जैसे हमने पहले BS के केस में किया था। 75 प्लस 50 माइनस 8 इंटू 8, दिस इज योर ग्रॉस एरिया। इस ऐसे निकाल लीजिए, और एग्जैक्ट एरिया अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्ट एरिया आपको स्टील टेबल से मिलेगा, ओके। इफ इट इज कमिंग 936, एरिया इज 936, और यहाँ पर आपके दो एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन इज 2, सो मल्टीप्लाइंग बाय द 2, ओके। ये 2 इसलिए आया क्योंकि दो एंगल सेक्शन है, डिवाइड बाय द गामा m1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग एज 425.76 किलो न्यूटन, ओके। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, 425.76 और 75 whatever किलो न्यूटन। This is strength in yielding. Coming to the next is to find rupture strength, right? Rupture strength एंगल सेक्शन के लिए फिर वो बड़ा सा आपका पूरा जो है आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, बीटा फाइंड करना पड़ेगा। बीटा के लिए आपको पता है BS निकालना पड़ेगा, आपको LC निकालना पड़ेगा, W वगैरह पता होना चाहिए, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट दी BS, तो BS के लिए हमने बताया था आपको कि ये आपका एंगल सेक्शन है, दिस और दिस। यहाँ पर आपने बोल्ट, दिस इज योर बोल्ट लाइन फॉर वन एंगल सेक्शन। तो ये डिस्टेंस आपकी WT थी आई थिंक, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है, ये 50 आपको गिवन है। इसको बोलते थे W, इसको बोलते थे WT। ये 40 आपको गिवन, दिस इज गेज डिस्टेंस 40 इज गिवन टू यू। और थिकनेस कितनी एंगल सेक्शन की, 8। तो BS विल बी क्या होगी, BS WT प्लस W माइनस T, यानी 50 प्लस 40 माइनस 8, ओके। 50 प्लस 40 माइनस 8, इट इज कमिंग 82 mm। ये होगी आपकी BS shear leg width, राइट। नेक्स्ट इज टू फाइंड LC वैल्यू, लेंथ ऑफ कनेक्शन। लेंथ ऑफ कनेक्शन कैसे निकालेंगे, फिगर आपके सामने है, इट इज गिवन 1 2 3 4 बोल्ट है। लेंथ ऑफ कनेक्शन इज फ्रॉम दिस बोल्ट टू द लास्ट बोल्ट से लास्ट बोल्ट की जितने भी विड्थ है। तो पिच इज गिवन टू यू, पिच आपको गिवन है कितनी, 50 mm, राइट। कितने बोल्ट है यहाँ पर, 4 बोल्ट हैं, तो कितने स्पेसिंग हो गई यहाँ पर, 3 स्पेसिंग हुई, राइट। 50 प्लस 50 प्लस 50, 3 पिच हो गई। सो लेंथ ऑफ कनेक्शन विल बी 3 टाइम्स ऑफ 50, तो लेंथ ऑफ कनेक्शन विल बी 150 mm। LC आ गया, W is 50 mm, fine। So FY you know 250, FU is 410। so बीटा आपका निकल जाएगा, बीटा आपका निकल जाएगा 1.4 माइनस 0.076 इंटू BS अपॉन LC,
इंटू डब्ल्यू ओवर टी इंटू एफ वाई ओवर एफ यू, सब आपको पता है। बीटा आप कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा इज कमिंग 1.242। ओके, और बीटा की एक रेंज भी गिवन है आईएस कोड में, द रेंज इज 0.7 से लेकर 1.443 के बीच में ही बीटा रहना चाहिए, और हमारा बीटा जो है इस रेंज के बीच में ही आ रहा है, देन नो नीड टू वरी। ठीक है, इफ बीटा वैल्यू may come outside this range, like it may come like 1.5, so you will limit this beta to this maximum value 1.443। 1.443 से ज्यादा नहीं लेना है, 0.7 से कम नहीं लेना है। ठीक है, गॉट इट। बीटा आपका आ गया, राइट। नाउ अब हम निकालेंगे रप्चर स्ट्रेंथ। रप्चर स्ट्रेंथ आपको पता है 0.9 FU ANC ओवर गामा M1 1.25 प्लस बीटा into AGO into FY over 1.1। नाउ टू टास्क, पहले टास्क है आपका ANC फाइंड करना और AGO फाइंड करना। नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग इज ANC, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग इज AGO। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बताया था, आपको फिर रिवाइज करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है ANC, देखिए यहाँ पर सॉल्व आउट किया है। diameter of bolt is given is D naught, it is given as 18 plus 2 is equal to 20 mm. Diameter of bolt is 18 mm. So D naught is diameter of hole, which is 18 plus 2 equals to 20 mm. तो नेट एरिया विल बी, नेट एरिया में देखिए डायमीटर ऑफ होल आपको माइनस करना पड़ता है, राइट। तो 75 लॉन्गर लेग, इस तरह से आपका ये जो एंगल सेक्शन था, यहाँ पर आपने बोल्ट किया हुआ है, तो ये एंगल 75, ये लेंथ 75 कनेक्टेड लेग की, 75 माइनस 20 आपको करना है क्योंकि डायमीटर ऑफ होल आपके पाथ में आ रहा है, इनटू होना चाहिए था थिकनेस ऑफ दिस एंगल सेक्शन 8, बट 8/2 इंटू 8 एंड 8/2 इंटू 8 आप एएनसी में से भी माइनस करेंगे और एजीओ में से भी माइनस करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्ड में समझाया था कि दिस ब्लॉक, दिस कॉर्नर ब्लॉक एरिया विच इज 8 इंटू 8 थिकनेस इंटू थिकनेस इज कंसिडरिंग ट्वाइस, इसको हम अननेसेसरीली दो बार कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए हम आधा एरिया इसमें से और आधा एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं, राइट। 75 माइनस 8/2 माइनस 20 इंटू 8 थिकनेस बाहर, सिमिलरली 50 माइनस 8/2 इंटू 8 थिकनेस बाहर। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे नेट एरिया एंड क्रॉस एरिया। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस these area, we'll put this value in this big equation TDN। ठीक है, rest thing we know, beta we have calculated already, then we'll put this thing here and we'll get answer TDN, rupture critical section is 224.31 kilonewton। so this is the rupture strength for one angle। ठीक है, ये एक एंगल के लिए जो भी आपने BS बताया, लेंथ ऑफ कनेक्शन बताया, सभी चीज वो एक एंगल सेक्शन के लिए, एक की स्ट्रेंथ इतनी है। और यहाँ पर कितने एंगल सेक्शन है हमारे, दो, वी हैव टू सेक्शन, एक के लिए हमने निकाल दी, सो मल्टीप्लाइंग बाय दी टू, सी हियर, multiplying by the 2, so for both the angle section 2 into 224.31 which is coming out 448.62 kilonewton। okay, so this is your rupture strength for both the section। now coming to the third one, the larger one, block shear strength। okay, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे ब्लॉक shear strength। similarly we will calculate this block shear strength for one angle, and in last, at last, later we will multiply by the 2 with the one strength of one section। ओके, तो इस तरह से आपका बोल्ट का अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर आपको शो किया है मैंने, स्क्रीन शेयर हो रही होगी प्रॉपर्ली आपको। इस तरह से एंगल सेक्शन की लॉन्गर लेग अटैच है, राइट। लॉन्गर लेग में 75 वाली, और आपके पास कितने बोल्ट हैं, 4 बोल्ट, यू हैव 4 बोल्ट विद द पिच 50-50-50। फाइन, edge distance is also given to you 30 mm। okay, fine, and this height
is given to 35 mm because this distance, ये बोल्ट के लेवल से नीचे तक की डिस्टेंस आपको 40 गिवन थी, राइट? टोटली 75, तो ये आपको गिवन हो गई कितनी ऊपर वाली 35। ओके, तो दिस प्लेट विल फेल एज ब्लॉक लाइक दिस, लेट अस से, और दिस प्लेट may fail like this. So we are assuming that this plate is failing like this, or we can assume that this plate is failing like this. So in this question we have taken this plate is failing 1 2 3 4, ये यहाँ से ऐसे फेल हो रही है, ठीक है? तो ऐसे अगर हम मान रहे हैं, कैलकुलेट करना है हमको, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, दैट इज 35। ये टोटल कितनी है? 50 प्लस 50 प्लस 50, और ये 30, राइट? ये हो गई 180 mm, ये हमको पता है, और ये 35 वर्टिकल हो गई। नाउ वन बाय वन वी विल कैलकुलेट द ऑल एरिया, एवीजी, एवीएन, एटीजी, एटीएन, राइट? फर्स्ट इज एवीजी। एवीजी क्या था? एवीजी इज शेयर का यील्ड एरिया, शेयर का ग्रॉस एरिया, शेयर का टोटल एरिया। मतलब शेयर मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल वाली लाइन शेयर लाइन होगी, ठीक है? तो अगर यहाँ से यहाँ तक आपका फेलियर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ या लेंथ इनटू थिकनेस, तो हमने अभी कैलकुलेट कर ली, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 30, टोटल इज 180 mm। 180 mm into thickness, that is 8, thickness of angle section is 8। so here देखिए 180 into 8, it is coming out as 1440 mm square। तो आपकी AVG इजिली निकल गई। AVG मैंने बताया था, आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, जिस ब्लॉक के अलोंग आपने फीलर माना है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल लेंथ इनटू द थिकनेस इज योर AG। इसी में अगर मैं नेट एरिया बोलूं, AVN की बात करें, तो AVN क्या हो जाएगा? सेम लाइन में बस नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं वो आपको माइनस करना है, दैट इज द थिंग ओनली। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, देखिए ये इस तरह से फील हो रहा है, तो ये बोल्ट पूरा आ रहा है, देखिए 1, दिस बोल्ट इज कमिंग होल 2, दिस बोल्ट इज कमिंग एज होल 3, एंड द लास्ट बोल्ट इज कमिंग हाफ। ठीक है, फेलियर कहां से? हाफ से होता है, कॉर्नर बोल्ट का। तो ये हाफ आप लेंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 0.5, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय द होल डायमीटर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, किसमें से? टोटल 180 mm लेंथ में से, एंड देन यू विल गेट द नेट एरिया इन शेयर। तो टोटल लेंथ आपको पता है 3 इंटू 50 प्लस 30 180 माइनस 3.5 टाइम्स ऑफ टी नॉट 20 mm, ये आपके आगे नेट विड्थ इन शेयर। और भैया ये तो विड्थ आई है, विड्थ के मैं मल्टीप्लाई करोगे इसकी थिकनेस की 8 की, योर AVN इज कमिंग एज 880 mm स्क्वायर। इस तरह से ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, बस आपको ATG भी निकाल देना है और ATN भी निकाल देना है। ATG देख लीजिए एक बार, ATG क्या है? वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल यानी 35, टोटल हाइट 35 है, इस तरह से 35 इंटू 8 थिकनेस 280 mm स्क्वायर, ये हो गया आपका ATG ग्रॉस एरिया। सिमिलरली टेंशन में नेट एरिया, यानी वर्टिकल में नेट एरिया, मतलब कितने बोल्ट आ रहे हैं, देखिए इस तरह से फिलर यहाँ से हुआ और ये ऐसे चले गया, तो जो कॉर्नर वाला बोल्ट है वो तो हाफ ही लेते हैं, इस तरह से फिलर हुआ है ना, तो ये बोल्ट क्या है? ये हाफ है, तो 0.5 माइनस कर देंगे, दैट्स इट। 35 माइनस 0.5 इंटू 20, होल डायमीटर का आधा माइनस करेंगे 35 वर्टिकल लेंथ में से, और दिस इज द विड्थ इनटू थिकनेस 8, तो एरिया आ गया आपका 200 mm स्क्वायर, ये हो गया आपका ATN। ऑल फोर एरिया यू हैव, फॉर्मूला यू नो, TDB1 0.9 FU AVN over root 3 into 1.25, shear rupture, then tension yield FY into ATG tension yield over 1.1, ऑल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया 213.62 किलो न्यूटन। किसका? एक एंगल सेक्शन का आंसर आया ये। फॉर टू एंगल सेक्शन ट्वाइस कर दीजिए, इट इज कमिंग 427.24 किलो न्यूटन। सिमिलरली TDB2
shear yield tension, shear yield एंड टेंशन फ्रैक्चर। ओके, ये आपका हो गया। तो अब आप देखिए, shear मतलब एवीजी, एवीजी इंटू यील्ड मतलब एफ वाई ओवर रूट थ्री इंटू 1.1, ये हो गया। टेंशन फ्रैक्चर का मतलब हो गया 80 n इंटू एफ यू इंटू 0.9 ओवर 1.25। ऐसे 1 के लिए आ गया, ऐसे आपने 2 के लिए निकाल दिया, 496 का ट्वाइस कर दिया। टीडी बी वन एंड टीडी बी टू में से जो भी लेसर है वो आपने अपनी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को कंसिडर कर लिया। तो 427 इज वन एंड 496 इज अनदर वन। So 427.24 is your block shear strength, right? This is your end of the numerical. आपके पास तीनों स्ट्रेंथ आ चुकी हैं। All three you have. First one, let us say, ये let us. This is first one is 425 yielding in rupture. Second one strength is 448, right? And in third one at last, strength in block shear is 427. Whichever is minimum in all these three is our design tensile strength. तो minimum from, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, minimum from 425, 448, 427, this will give you the design strength। तो आपने देख लिया भाई minimum कौन सी है। The minimum is this one, minimum is yielding one। 425 is your design tensile strength, यही आपको फाइंड करनी थी। ओके, इन दिस क्वेश्चन इस तरह से आपको प्रोसीड करना है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी वन, सी डिजाइन न्यूमेरिकल, जैसा मैंने बताया था आपको। देन वी विल मूव टू लग एंगल, इसी का एक टॉपिक है, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। एंड देन वी एंड अप दिस यूनिट आल्सो। 2 से 3 लेक्चर में ये टेंशन मेंबर आपका खत्म हो पाएगा। Okay, fine though. I hope you understood this thing. So, okay, thank you for this class.